ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਮੜਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾ ਤਣੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਵਲਗਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 21ਵੇਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਫਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਮਖਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਮਾਰਕ ਟਲੀਅਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 17-18 ਜਿਹੜਾ ਆਗਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਵਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੇ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ ਦਾ, ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 21ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਫਮਾ ਆ, ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਲਈ ਅਨੁਮਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਲ
ਅਮਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਰੱਦਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਹੂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁੜਿੱਤਣ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆदान प्रदान और नेड़ता करने लिए जो भी होवे वो करना चाहिए। हुकूमतें 70 सालों से यही नहीं सोच सकी कि उन्होंने बातचीत करनी है। 4 लड़ाइयां लड़के देख चुके हैं हम लोग। माएं जनाजे उठा उठा के, जनाजे रो रो के थक चुकी हैं। इस पंजाब ने भी बहुत सी लाशें देखी हैं और उस पंजाब ने भी बहुत सी लाशें देखी हैं। और माजरत के साथ और बड़े अफसोस के साथ दिल पे हाथ रख के ये बात हो रही है कि अभी और लाशें देखनी है हमने, क्योंकि जहालत जब तक खत्म नहीं होगी, अंधेरे खत्म नहीं होंगे। अमन लाने के लिए अब हमें सोचने की नहीं, कुछ कर दिखाने की जरूरत है। हम 5 अफराद आए हैं इस मर्तबा, सिर्फ एक हाथ में भी 5 उंगलियां होती, आप बड़े भाई हैं, हम अमन का हाथ मिलाने आए हैं। चाहे तो कबूल करें, चाहे तो आप ठुकरा दें, लेकिन हम आते रहेंगे, हाथ बढ़ाते रहेंगे, हाथ मिलाते रहेंगे। और इसके कम से कम आप लोगों को तो जोश का इजहार करना चाहिए। आप लोगों को तो बताना चाहिए दोनों हाथों से कि हम हाथ मिलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। हम हाथ मिलाना चाहते हैं, हम दिल से दिल मिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों हुकूमतों की तरह जाहिल नहीं हैं। कश्मीर में खून बहे या कोयटा में, इंसान का खून बह रहा है। होश करनी चाहिए हमारी हुकूमतों को। आने वाली नस्लें आपसे जहालत नहीं चाहती। आने वाली नस्लों को अच्छी तालीम चाहिए, अच्छे लिखने पढ़ने वाले चाहिए, अच्छी सोच वाले चाहिए। अभी मैं और बबली नीचे बैठे बात कर रहे थे, 100 साल से माए इस धरती में इधर उधर हो गई। मेरे बुजुर्ग सिख बड़े चाचे बाबे ताए बैठे हैं, अपने हाथों से इन्होंने भी अपनी बेटियां कुओं में फेंकी होंगी, हमने भी फेंकी। ना उनकी कब्रें, ना उनको रोने वाला कोई। फिर भी इन माओं के, इन बहनों के दिल से दुआ है, आपके घरों से जनाजे ना उठे, आपके कंधों में लाशें ना आए। दोनों मुल्कों की जो हुकूमत है कितना चाइल्डिशली बिहेव करती है। कल पाकिस्तान की ओर से एक बयान आया कि हम हिंदुस्तान को इनवाइट करते हैं कि कश्मीर पर बातचीत करने के लिए। हिंदुस्तान ने इमीडिएटली जवाब दिया, हम टेरर पर बात करने के लिए तैयार हैं। यानी किसी ने एक बात कही तो उसको दूसरे तरीके से जवाब देना, यह आज की बात है, यह लंबे समय से चलती आ रही है। इसीलिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़े, यह मुझे लगा है कि दोनों मुल्क के अवाम को कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना होगा। हम हमेशा यह कहते आ रहे हैं कि अवाम अमन चाहती है, लेकिन वो अवाम खामोश है, वो अवाम साइलेंट है। और कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर हम चले जाएं तो जो अमन चाहने वाले जो लोग होते हैं वो कम होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं अमन चाहने वाले, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। वो ऑर्गेनाइज नहीं होने की वजह से हम लोगों को पता नहीं चलता है कि उनकी मेजॉरिटी है। लेकिन जो अमन नहीं चाहते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं
और इस तरीके से माहौल बनता है कि उनकी ही मेजोरिटी है। कि जिस तरह से हमारे यहाँ माना जाता है कि पाकिस्तान में दहशतवादी जो है, टेररिस्ट जो है, उनकी मेजोरिटी है, और उस तरीके से पाकिस्तान में ही माना जाता है कि यहाँ पर भी वही सिनारियो है। लेकिन स्थिति इससे काफ़ी अलग है। जो आम जनता है वो शांति चाहती है, वो मिलना चाहती है, वो ये जो बॉर्डर है इसको तोड़ना चाहती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि नेता नहीं चाहते हैं, सियासत नहीं चाहती है, क्योंकि अगर सियासत ये चाहेगी तो उसका अपना मकसद खत्म हो जाएगा। वो लड़ेंगे किस मुद्दे पे, क्योंकि फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम अपनी साथी से यहाँ पर बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि बिल्कुल जैसे सार्क है वैसे महिलाओं का सार्क होना चाहिए। हम शांति की बात करते हैं, लेकिन कहीं क्या हम महिलाओं की बात करते हैं कि आज पाकिस्तान में महिला क्या सफर कर रही है, आज हिंदुस्तान की महिला क्या सफर कर रही है, आज जिस माँ का जवान बेटा मर जाता है उस माँ पे क्या बीत रही है। क्या हम ये जानते हैं क्यों नहीं किसी नेता का बेटा मरता है, वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, बॉर्डर पे सिर्फ आम जनता ही क्यों मरती है, वो आम सिपाही ही क्यों मरता है, वो नेता क्यों नहीं मरता है जो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो। कि आज हालात इतने हम बिगड़ गए हैं कि हम उसको ये समझ नहीं पा रहे कि बिगड़े कैसे हैं भाई। क्या पाकिस्तान के कश्मीर में क्या हो रहा है उससे हिंदुस्तान के लोगों को कोई लेना देना है। आज रमेश साहब कह रहे थे कि भारत का टेलीविजन जो है बलूचिस्तान को दिखा रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान को भारत के टेलीविजन ने कब दिखाया, कब बलूचिस्तान की बात हुई हमारे यहाँ, कब फाटा की बात हुई हमारे यहाँ, किसी ने पूछा अज़रबैजान पाकिस्तान में चल रहा है उसके बारे में किसी ने बात की। तो ये जो काउंटर होता है इसको भी समझें कि जिस जनरेशन के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि वो उन लोगों से मुतासिर हो जाती है, उनसे इंस्पायरेशन लेती है, ब्रेन वॉश हो जाता है, तो सच्चाई को भी समझें, दोनों चीजों को समझें। और इसीलिए बार बार मैं कहता हूं इस मन से खड़े होकर के मैं पाकिस्तान को कोई बात कहूं, उनको कोई एडवाइस करूं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता समझदार है, उनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं वो भी जानते हैं। अगर सच्चाई में कुछ आपको करना है तो आप पाकिस्तान के तमाम लोग पाकिस्तान की हुकूमत पे, पाकिस्तान की फौज पे दबाव डालें, भारत के लोग भारत की सियासत पे फौज डालें तो बेहतर होगा। जब हम कहते हैं तो उसका मतलब वो कुछ निकालते हैं, जब वो कहते हैं तो हम कुछ दूसरा मतलब निकालते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। और कई सारे रमेश, कई सारे ईदी साहब, कई सारी निर्मला देश पांडे को इन दोनों मुल्कों को जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पितरां दी चुक्की पंड भार बन जाए ना, पितरां दी चुक्की पंड भार बन जाए ना, उमरां तो लम्मी किते हार बन जाए ना, सीनियां च सल पाउंदी खार बन जाए ना, नैणों वेंदी रत रंगी धार बन जाए ना, साडियां दिलां दे आर पार बन जाए ना, वागे दी लकीर ए दीवार बन जाए ना, वागे दी लकीर ए दीवार बन जाए ना। और कल नूं फरीद दियां बोलां ते ना शक होवे, कल नूं फरीद दियां बोलां ते ना शक होवे, वंडिया वंडाया गया नानक दा हक होवे, पैड़ा मियां मीर दियां उत्ते उगा अक होवे, पैड़ा मियां मीर दियां उत्ते उगा अक होवे, डोलिया हुसैन किते बुल्ला बैठा थक होवे, डोलिया हुसैन किते बुल्ला बैठा थक होवे, जारड़े दे बोलां विचों लहू दी हवाड़ आए, हत्थां च रबाब हथियार बन जाए ना, हत्थां च रबाब हथियार बन जाए ना, वागे दी लकीर आर दीवार बन जाए ना। एक तो मैं ये गल तुहानूं कहनी चाहुंदा कि जिहड़ा मंच है अपना, आपां 20-22 साल तो अज 21 साल हो गए हैं, एक बड़ी अच्छी गल करते आ रहे हैं, ये मैसेज देंदे आ रहे हैं कि असीं शांति के प्रतीक हैं, प्यार के मदई हैं, असीं दोवां देशां की एकता चाहुंदे हैं। सो जिहड़ा मुद्दा भी है, मुद्दिआं दे उत्ते भी सानूं जिहड़ी है वो चाहिदी है कि पूरी क्लैरिटी जिहड़ी है कि असीं साडी समझ जिहड़ी है कि कश्मीर के मुद्दे दे उत्ते खास तौर पर, क्योंकि लोगों को पता नहीं लग रहा कि गल की है, पर यह गल सोचने वाली भी है कि जे कि नौजवान का उत्ते कतल होंदा है सुरक्षा हत्थां दे सुरक्षा अधिकारियों के हत्थों, तो उत्ते लखां लोग सड़कों पर आ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लोग शहर बंद कर लेंगे हैं। ये चीज़ां सानूं धरातल दे उत्ते देखणियां पैणगीआं कि असल दे विच समस्या कित्थे है ते किੱਧਰ ਨੂੰ जा रही है। एक तो यह गल करनी चाहिए है। इदां ही प्रधानमंत्रियों नूं देखी जाते आउंदे जांदिआं नूं तत्त रूप दे विच कुछ नहीं निकलदा। सो तत्त रूप दे विच कढण लई आपां नूं भी अपनी गल जिहड़ी आ वो अंतरराष्ट्रीय लैवल ते करनी चाहिए है। और जरूर मेरा मतलब
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। दिल में मन में एक सवाल उठता है, क्या 20 साल पहले अमन अब के अमन से बहुत अच्छा था? वीज़ा पॉलिसी का नरमी थी, उधर से आने जाने का इतना मसला नहीं था। अब क्यों ऐसे हो गया कि नफरत फैलाने वाले चंद लोग, अब नफरतें क्यों बढ़ गई हैं? हमें इस पे सोचना पड़ेगा। क्या हमारी पॉलिसी नरम थी या वो नफरत फैलाने वाले बहुत मजबूत थे, जो दोनों हुकूमतों को मैनेज कर लेते हैं और इनके खिलाफ काम करते हैं? जब भी कभी हिंदुस्तान में धमाका होता है तो वो कहते हैं ISI शामिल हैं। अभी लाशों की तादाद, जख्मियों की तादाद का पता नहीं लगता, तो पाकिस्तान में धमाका होता है तो हुकूमती नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि ये रॉ ने किया है। तो मैं दोनों हुकूमतों से ये पूछता हूँ कि आपके पास कौन सा आला है जो धमाके के 1 मिनट बाद पता चल जाता है कि रॉ ने किया या ISI ने किया? क्या पहले इन्हें पता नहीं चलता ये धमाका किसने किया है? धमाका करने वाले को क्यों नहीं रोकते? इल्जाम तराशी और ये जिन लोगों का काम है वो कर रहे हैं। और मीडिया का किरदार मानिक जी बहुत नेगेटिव है और ये बच्चों में इतनी नफरत फैला रहा है और ये नेगेटिव चल रहे हैं दोनों तरफ से। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत देर से देख रहा था कि यहाँ बहुत जवान ये स्कूल के बच्चियाँ बैठी हैं पीछे। मैं उन लोगों से मुखातिब होकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े अक्लमंद लोग हैं, बड़ी बड़ी गहरी बातें आप सबने सुनी है और कही हैं, तो मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। वो जो बैठी है लाइन में लोग हैं, मेरी सारी उम्मीदें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए उनके ऊपर बनी हुई है। ऐसी बच्चियाँ पाकिस्तान में भी हैं और मेरा ये एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में भी और यहाँ भी कि मैं जब बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये बच्चे हम जैसे लोगों से कहीं ज़्यादा ज़हीन हैं, अक्लमंद हैं और आगे बहुत तरक्की करेंगे। और इस मुल्क का और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का, जहाँ मैं पैदा हुआ था, हम लोग कौन हैं? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हम लोग रिश्तेदार हैं, 2 कज़न हैं। इंडिया और पाकिस्तान हम लोग भाई हैं, एक ही खून से पैदा हुए हैं। और आज हम कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं। एक साहब ने कहा कि उनके 6 साल की बच्ची है, वो कहती है पापा वहाँ मत जाइए, वहाँ गोलियाँ बरस रही हैं। मेरे पास भी एक ग्रैंड डॉटर है उसी उम्र की, वो मुझे कह रही दादा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं अमृतसर जा रहा हूँ। उसने मुझे क्या कहा मालूम है? कहता आप मुझे अमृतसर क्यों नहीं ले जाते? मैंने कहा तू क्या करेगी? कहती है मैं हरमंदिर साहब जाऊँगी। उसने मुझसे गोलियों का कोई जिक्र नहीं किया। ये हमारी दुश्मनी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, तो बहुत थोड़े दिन और हैं। और ये पॉलिटिशियंस की दुकानें दोनों तरफ जो चल रही हैं, ये जब तक ये चल रही हैं तब तक दुश्मनी है। लेकिन ये जो बच्चियाँ बैठी हैं पीछे और इनके साथ के जो बच्चे उधर बैठे हैं, ये फैसला करेंगे कि अब बहुत हो चुका, अब हम एक साथ मिलकर साउथ एशिया की तरक्की करेंगे। और ये लोग, मैं आपसे दावा करता हूँ, they will beat China and Pakistan, no, China and America in economic power. So let us not be despaired. Don't feel sad. The future is very bright for both Pakistan and India. Let us pray for them. Thank you. अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने पाकिस्तान की रियासत को ये बताया, ये समझाया कि एक फर्द चाहे तो वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकता है जब हर तरफ लाशें ही लाशें हों, चाहे वो कराची हो या कोई और शहर हो, कोई डिजास्टर हो, कुछ भी हो। उस वक्त जब शहर के अंदर कर्फ्यू का समा हो तो वो एक शख्स का बनाया हुआ नेटवर्क जो है वो तमाम जो हुकूमती इदारे हैं उनसे बड़ा साबित हो सकता है वहाँ पे लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो इसलिए फिर आज दुनिया भर में सबसे बड़ा एम्बुलेंस सर्विसेज का नेटवर्क ईदी नेटवर्क है। ये है उस इदारे की कामयाबी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मानिक जी देखते हैं कि ये जो मुआशरों में तब्दीलियां हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो जोली फैलाव मुहिम होती थी, हाथ भिखारी बनते थे, भीख मांगते थे। और जब भी उनकी अब डेथ हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा ईदी बनना है हमने।
ईदी की तरह सोचना चाहिए। हम वहां पे टीवी प्रोग्राम्स पे भी ये बात करते थे, हम भिखारी नहीं बनना चाहते। ईदी की सोच थी, उसको अपनाएं, लेकिन जो काम हुकूमतों के इदारों के करने के होते हैं वो उन्हें ही करने चाहिए। माशरे तब्दील जो है रियासतें करती हैं, इस तरह इंडिविजुअल लेवल पे नहीं चेंज आ सकती। कितने लोग ईदी बन के या बाबा अमते बन के यहाँ पे या और नाम आपने जो लिए भारत के, वो भारतीय आबादी को फैसिलिटेट कर सकते हैं? नहीं, जो यहाँ की हुकूमतें और इदारे हैं और जिनकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें ही पूरा करना चाहिए। हमें उन पे दबाव डालना चाहिए, ये काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक नया आंदोलन शुरू होना चाहिए, एक नया आंदोलन शुरू होना चाहिए पाकिस्तान में, एक नया आंदोलन शुरू होना चाहिए भारत में भी। और ये आंदोलन के मकसद हो जाएगा शांति पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और जब आंदोलन से जनता की आवाज बुलंद होता है तब तो शायद कुछ प्रगति होता है। और मेरा ख्याल है कि इन आंदोलन को नेता महिलाएं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पुरुष हैं हमने कुछ नहीं किया, हमको हमारी गलती मांगना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए दूसरे किस्म का आंदोलन दूसरा नेताओं भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जब ये दोनों आंदोलन हाथ जोड़ के बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत प्रगति जा सकते हैं। अभी जनता की आवाज जो है कोई नहीं सुनता है। हम सब लोग जानता है कि आम जनता जो है कि मांग क्या है शांति, लेकिन कौन सुनता है? लेकिन अगर नया आंदोलन शुरू करते हैं, तब तो जनता की आवाज बुलंद हो जाएगा और पॉलिटिशियन तो पहचानेंगे कि शांति में वोट है, हिंसा में वोट नहीं है। जब तक पॉलिटिशियन नहीं पहचानता है कि हिंसा में वोट नहीं है, शांति में वोट है, तब तक कोई प्रगति नहीं होती है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 21ਵਾਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ, ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਿਤ ਮੰਚ ਜਲੰਧਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। मैं जो दोनों देश हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी टेंशन है उसको रिज़ॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो टेंशन में रह के तो नहीं हो सकता। हम जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम एशिया में, दुनिया चांद से आगे कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है और हम अभी तक लड़ाइयों में, झगड़ों में, हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, हमें फ्लरिश करना चाहिए। हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके दिल में, दिमाग में नफ़रतों का बीज नहीं होना चाहिए। हम इसी टेंशन में, इसी ब्लड शेड में पैदा हुए और इसी ब्लड शेड में जाना नहीं चाहते। मैं दोनों देश से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें एक अच्छे साथी, अच्छे नेबर और अच्छे ब्रदरहुड का मुजाहरा करना चाहिए।